ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਐਸਡੀਐਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਿਊਮਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋर्ट लेके आए क्योंकि पिछले नहीं, मैं पिछले उसमें लेके आया था। पिछले बार लेके आए, सॉरी ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ नहीं, पिछली बार तो बहुत ज्यादा पासपोर्ट लेके आया था ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪਾਸਪੋर्ट। बेड पे भले ही रहा लेकिन मेरा काम मतलब कंटिन्यूसली, पर ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋर्ट ਆਉਣ। नहीं, पासपोर्ट हर बार लेके आता था मैं, कई बार टीवी पे नहीं आता था लेकिन मेरा स्टाफ आता था और कंटिन्यूसली जब से मैं, मान लो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, उसके बावजूद मैंने कभी लेट डाउन नहीं हुआ, मैं कभी भी नीचे नहीं गया, क्योंकि मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, अगर मेरा स्टाफ डेडिकेटेड है, उनको इतनी ट्रेनिंग दी गई, इवन के डू यू बिलीव कि जब मेरा एक्सीडेंट भी हुआ उसके बावजूद भी मैंने अपने ऑफिस में बिस्तर लगा रखा था, बेड वाला बिस्तर, उस वाला अपना सोफे वाला बिस्तर। स्काइप सेशन, मतलब हर एक स्टाफ को स्काइप सेशन देता था, डेली टास्क मिलता था, आज तूने कनाडा बताना, आज तूने ऑस्ट्रेलिया बताना, आज तूने न्यूजीलैंड बताना है, यूरोप बताना है। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, बिजनेस तब डाउन जाएगा जब सिर्फ आपको नॉलेज हो, आपके स्टाफ को नॉलेज ना हो। अगर आपके स्टाफ को नॉलेज है, मैं ये देख चुका हूँ, 8 महीने आपके सामने है, मैं बेड पे रहा, इवन आप मतलब गाड़ी में ही आपके स्टूडियो में आता था, इवन ऑफिस में बहुत कम जाता था। इवन आज की डेट में भी अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे 2 बंदे उठा के लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे पैर में जो उसके कारण स्टूडियो में चढ़ा नहीं जाता। तो उसके बावजूद मैं कभी भी, मेरा बिजनेस डाउन नहीं गया। रीजन बिहाइंड दिस, आई हैव डेडिकेटेड स्टाफ, और डेडिकेटेड स्टाफ ही एक बच्चे को वीजा दिलाता है। प्रदीप जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਸਪੋर्ट ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। मैं पिछले वीक भी लेके आया था। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ मैं नहीं होऊंगा फिर ਇੱਥੇ, मैं जब अमन जी का शो था वो, उसमें मैं तकरीबन 15-16 बच्चों के पासपोर्ट हमने दिखाए। चलो गल शुरू कर दें जी पासपोर्ट तो ही। सक्सेस रेट एसडीएस बारे थोड़ा जा चानना पाओ। देखो जी, एसडीएस में 100% सक्सेस रेट है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई चीज़ें देखी जाती हैं जब आपका एसडीएस में, देखो 6 सीट्स हैं जी, 6 सीट्स आपके पास चाहिए, रिलीवेंट कोर्स हो, अच्छा कॉलेज हो, चंगा कॉलेज हो, अगर आप प्रोविंस ठीक ठाक लेते हो और फाइल आपकी टाइम पे लगती है, आपका वीज़ा निकलेगा। एसडीएस में गुड न्यूज़ है, वीज़ा आने स्टार्ट हो गए हैं और एसपीपी वाले पिछले वाले भी आ रहे हैं, जनरल वाले भी आ रहे हैं और एसडीएस वाले भी आ रहे हैं। और अभी जनरल में फाइल डली है, जब से 8 जून के बाद जो एसडीएस इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद जनरल में भी वीज़ा स्टार्ट हुए हैं। तो देखना यही है कि हाई कमीशन वीज़ा देने के लिए बैठी है। र्यूमर जो मार्केट में था कि भी एसडीएस के अलावा किसी और में वीज़े नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे के 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है या 6 बैंड नो लेस देन 5 है, अगर बच्चा 1 साल की फीस पे करता है, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेता है और जीआईसी साथ लेता है, तो डेफिनेटली बच्चों की वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जनरल का फायदा उठाया जा रहा है आज की डेट में। स्टूडेंट क्या, कंसल्टेंट क्या फायदा उठाते हैं, एजेंट खासकर, कि भाई वो पैकेज करते हैं और पैकेज करके, क्योंकि जनरल में क्या होता है कि आप प्रेफर्ड ऑप्शन बोलते हैं कि वो $10,000 का जीआईसी ले लो या $10,000 का एजुकेशन लोन ले लो। तो ये पैकेज करते हैं कंसल्टेंट, 6 महीने की फीस के साथ वही 15 लाख का पैकेज कर लिया, 6 महीने की फीस पे कर दी, तो वो 4 लाख रुपए फीस पे करके 8-10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया अपनी पॉकेट में होता है कंसल्टेंट की में। अगर वो जीआईसी पे करवाएं बच्चे से तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बहुत हाई है। और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आप अच्छा बनाते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत हाई चांसेस है। साथ साथ में आपने ये भी ध्यान रखना कि आपका कंसल्टेंट कौन है। जी प्रदीप जी, 3 क्वेश्चन जो ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। क्वेश्चन ਸੀਗਾ जी कि टेस्ट हो रहा है
에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, US ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, GIC ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ SDS ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ GIC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ? देखिए सर, वीजा एम्बेसी देती है और 100% चांसेस होते हैं बच्चे की वीजा लगने के। इवन कि जब से SDS लॉन्च हुआ उसके बावजूद भी अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो 33% इंग्लिश, उस मैथ में भी 35% फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे बहुत से बच्चों के हमने वीजा आप ही अपलोड किए हैं। और वीजा अपलोड नहीं, स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल के साथ अपलोड किए हैं। देखना यही होता है कि भाई जो एक बच्चा सब्जेक्ट्स वाइज जो उसके पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वीक किस एरिया में है, जिस बच्चे में जिस सब्जेक्ट्स में वो वीक है, ऐसा तो नहीं कि आगे वही मेजर सब्जेक्ट्स वो पढ़ने जा रहा है। ये बहुत मैटर करता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ की बात हो रही हो, या बायोलॉजी की बात हो रही हो, या इकोनॉमिक्स, अकाउंट और आपकी बिजनेस स्टडीज की बात हो रही हो। तो रिलेवेंट कोर्स, और वो भी देखना ये होगा जो पास्ट में जिसकी अच्छी जो प्रीवियस एजुकेशन है जिसमें वो बहुत अच्छे लेवल पे है, आगे फर्दर वही मेजर सब्जेक्ट्स हो, तो इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। दूसरा, कॉलेज अच्छा हो, उसमें 2 साल से प्लस का अगर कोर्स हो तो इट विल बी मोर बेटर। और इवन कि हमने बहुत से बच्चों के इस तरीके से वीज़ा लिए हैं जो वीज़ा रिफ्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं 3-3, 4-4, 5 बार। हमने देखा कि उसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो ओवरकम की जा सकती हैं, तो वीज़ा लगते हैं। लाइक एक बच्चे का डिप्लोमा में रिफ्यूज़ है, हम बच्चे को बोलते हैं बैचलर में एडमिशन लो। एक बच्चे का 6 बैंड पर रिफ्यूज़ है तो हम बोलते हैं कि ट्राई टू गेट 6.5 बैंड। एक बच्चे का अगर कॉलेज में रिफ्यूज़ है तो हम बोलते हैं कि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ। एक बच्चे का टोरंटो या ब्रिटिश कोलंबिया की साइड है तो हम बोलते हैं कि आप न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर की तरफ जाओ, या फिर क्या नाम है नोवा स्कोशिया की तरफ जाओ, क्यूबिक की तरफ जाओ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, प्लस में SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत मैटर करता है, बच्चों के वीज़ा निकलते आते हैं। अब देखना ये है कि पहले SPP में एक बच्चे का रिफ्यूज़ हो जाता था या किसी भी कैटेगरी में रिफ्यूज़ होता था, SPP में नहीं डलता। अब अगर बच्चा 6 ईच ले लेता है तो वो 50 बार रिफ्यूज हो, SDS में फाइल डलेगी, स्टूडेंट्स के वीजा चांसेस हाई होंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार अनाउंस कर दूं क्योंकि सामने पासपोर्ट रखे हैं। तो ये स्टूडेंट है सतवीर कौर, ये बिलोंग करती है संगरूर से। इनका कनाडा का वीजा जी, ये पासपोर्ट आज ही जब आपके स्टूडियो में आऊं SDS की वीजा जी, आप देख सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट है, ये बिलोंग करते हैं जी फरीदकोट से, और स्टूडेंट का नाम है जी कमलजीत कौर। ये पिछली भी स्टूडेंट थी, गर्ल्स थी, ये भी गर्ल है, तो इसका आप कनाडा का वीजा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी, ये जयपुर से स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का नाम है प्रीतम सिंह राठौर। इनका कनाडा का वीजा है जी। ये आप भी की कलेक्शन है, मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले आज के दिन की ही। इसके अलावा ये स्टूडेंट है स्नेहा अग्रवाल जी, ये बिलोंग करती हैं जी हावड़ा से, वेस्ट बंगाल से। इनका भी एक दूसरी स्टूडेंट्स का वीजा है। इसके अलावा और देखो, ये आज की डेट में ये मैं ऑनलाइन वीजा इसकी फाइल लगी थी, अभी इसका वीजा आया है कनाडा। ये कनाडा है, ऑलरेडी रिफ्यूज केस था कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया, हमने इसकी ऑनलाइन फाइल यूनिवर्सिटी या कनाडा की बीटेक कंप्यूटर साइंस से थी जी। 2014 से एक्साइज डिपार्टमेंट में ये जॉब कर रहा है। ऑनलाइन इसकी फाइल लगी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ही गॉट द अप्रूवल, आज इसकी अप्रूवल आई है। कल या परसों इसका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा, इसका वीजा 2 दिन जिन्होंने स्टैंप लगा के 3 दिन मिल जाना, ये आ गया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बहुत अच्छा वीजा दे रही है हाई कमीशन। दिलशेर सिंह है, एडवांस डिप्लोमा बिल्डिंग एंड डिजाइन के लिए इसका वीजा है 5.5 बैंड पे। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी CSU यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, स्टूडेंट्स का नाम है जी रमनीत कौर। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी फहरीन, इनका स्पाउस वीजा है जी, मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पाउस केस है। BSc विद मैथ किया 2017 में, और ECU टू ECU एली कोर्स के साथ इसका एडिथ काउंटी यूनिवर्सिटी में ऐसी गॉट द वीजा। फेडरेशन यूनिवर्सिटी में जी अमनप्रीत वंदेर, ये भी स्टूडेंट्स 2 बीटेक
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2011 पास आउट है। उसके बाद जॉब कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इनकी सैलरी अकाउंट में आ रही थी। एमबीए के लिए फेडरेशन यूनिवर्सिटी में स्पाउस वीजा पे स्टूडेंट्स का वीजा है, और इसका मैंने अपना मेरी फेसबुक पे भी आजकल मैं इसका इंटरव्यू डालने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इसका इंटरव्यू किया था। जी। विक्रम स्टूडेंट है, फेडरेशन में यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम के लिए जा रहा है। इसके अलावा रणदीप है, ही गोट द अप्रूवल, आप देख सकते हैं इसका वीजा है। इसके अलावा नीतिका बत्रा, इसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा है जी। इसके अलावा मंगवीर कौर है, जो कि इनका अपना मास्टर इंटरनेशनल बिजनेस में IUBH यूनिवर्सिटीज में इनका वीजा आया है, आप देख सकते हैं, जर्मनी के लिए। इसके अलावा सुखमैनी है, बीकॉम 57%, 57% मार्क्स है, पीटी में 66 इसके स्कोर था, स्पाउस केस है, सी गोट द अप्रूवल। चिराग शर्मा है, इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली 2 या 3 दिन के अंदर जिनके वीजा निकले हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जी, मुबारक सारे नवी जिंदगी शुरू होनी है। एक सर मैं एक आपकी बात शुरू होने से पहले, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ दें। वेस्टर्न ओवरसीज का करनाल में ब्रांच स्टार्ट हो चुकी है, मुगल कनाल में। वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रोड प्राइवेट लिमिटेड, SCO 9, 10, 11 मुगल कनाल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम IELTS, PT एंड स्टूडेंट वीजा हमने किया है। गुड न्यूज है करनाल वाले स्टूडेंट्स के लिए, नियर बाई आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे IELTS, PT एंड स्टूडेंट वीजा को लेकर एक फेस्टिवल कर रहे हैं, एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें IDP, ब्रिटिश काउंसिल, पियर्सन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेस की डेलीगेट्स आ रहे हैं, फैकल्टीज आ रही हैं। जिन बच्चों को भी IELTS में या PT में प्रॉब्लम है, तो एक 3 घंटे का सेशन होगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को लेके बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाएगी। साथ साथ में रणवीर जी, यहाँ पे फॉरेनर फैकल्टी भी आ रही हैं। फर्स्ट टाइम करनाल में ऐसा हो रहा है कि फॉरेनर फैकल्टी यहां पे होंगी, जो बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। साथ साथ में स्टूडेंट वीजा को लेके मैं खुद और मेरी टीम होगी, चाहे आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, आपका हंगरी, पोलैंड, जितने भी कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, साइप्रस, हर एक कंट्रीज के लिए यहाँ पे ऑन स्पॉट असेसमेंट की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स IELTS, PT, OET, स्पोकन इंग्लिश या स्टडी वीजा में एडमिशन लेगा, उसको 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो कीप इन माइंड, 6 तारीख दिन सोमवार 6 अगस्त को ये 10 बजे आप प्लीज 7-10 बजे पहुंचना, जिसमें आपको IDP, ब्रिटिश काउंसिल की फैकल्टीज होंगी, साथ साथ में मैंने बताया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेस की और पियर्सन सर्टिफाइड, प्लस में फॉरेनर फैकल्टी यहाँ पे होंगी। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप एक बार जरूर आना। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो कम टू माई प्लेस, आई विल अश्योर यू कि आपको 100% ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। IELTS, PT, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕਹੂਗਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IELTS, PT ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ कि डिग्री ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ डिप्लोमा भी सक्सेस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया? सर डिप्लोमा में वीजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 6th पैन है, SDS में आपकी फाइल लगेगी, 2 ईयर प्लस आप प्रोग्राम लो। अगर आपने ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अपना इस साइड में जाना है, या नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंड लेब्राडोर की तरफ जाना है, हाँ सैस्कैचुअन और मैनिटोबा में मोस्टली 1 ईयर के प्रोग्राम होते हैं। आप चाहे डिप्लोमा में जाओ, चाहे आप डिग्री में जाओ, 6 प्रोग्राम के साथ जाओगे, SDS में आपकी फाइल लगेगी, आपका वीजा चांसेस बहुत हाई होंगे। अगर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है, 6 बेस्ट नो लेस देन 5 है, तो आपको जनरल में फाइल डालनी है। जनरल में वही है एक SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी ITR, क्योंकि एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, थोड़े से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा दिखाने हैं, प्लस में फंडिंग आपने दिखानी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज देना है, साल की फीस पे कर दो, प्लस में GIC ले लो, चांसेस विल बी हाई, आपका वीज़ा निकलेगा। प्रदीप जी, एक चीज़ होर देखने ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਿਸਟ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 4 ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਔਰ 4 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ICCRC ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टडी वीज़ा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ चेंज हो जाएगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ डिप्लोमा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फर्दर कर सकते हो। बट रणवीर जी, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जिस एम्बेसी ने यहीं से एक 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 21 साल के स्टूडेंट्स को टूरिस्ट वीज़ा दे दिया, पर्सन को टूरिस्ट वीज़ा दे दिया, अगर वो घूम के वापस आए, मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जब आपको टूरिस्ट वीजा मिल चुका है, आप घूम के आओ यार वापस, फिर उसके बाद अपनी फाइल लगाओ। स्टूडेंट वीजा में आपका वीजा आएगा, फिर भी जैसे रणवीर जी बोल रहे हैं, आप हाँ, जे पाउना भी है तो घट्टो घट्टी इस चीज की अवेयरनेस रखो। 4 बच्चे मिले, चारे मायूस सीगे बेचारे। सो प्लीज ਜਿਹੜਾ फॉलो ने ਜਿਹੜੇ रूल्स ने उन्होंने फॉलो करो, गाइडलाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ फॉलो ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਟਲਾਂਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ PR ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਹੋਣੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, 4 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, 4 ਸਟੇਟਾਂ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, बहुत बच्चे मिले सानू, 100 तो 150 बच्चा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान ਦਾ ਮਿਲਿਆ। सिर्फ 100 ही ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, पहले 100 ही मिला ना। आप ये देखो ना कि ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, चलो ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाँ हाँ पिछले बार ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਚ। मैं कह रहा हूं अटलांटिक ਹੁਣ ਉੱਠेगा, कुछ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ। देखिए, बहुत बढ़िया है। मेरा खुद का भतीजा अटलांटिक मतलब पायलट प्रोग्राम में ही फाइल डाल रहा है। उसका 2 साल की उसकी कैनेडा में पेट्रोलियम का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद उसको स्किल जॉब चाहिए थी, स्किल जॉब मिल गई है, और अब उसका 3 ईयर का जो वर्क वीज़ा वो भी आ चुका है। विद इन 3 मंथ 4 मंथ उसका PR जो है वो आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कनाडा में अगर आप जा रहे हैं और अगर आपको कोई स्टेट, कोई प्रोविंस आपको बुला रहा है, ठीक है, अगर इजी प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले अपने दोनों भतीजों को वहीं भेजा था जहाँ मुझे लगता है कि बच्चे कम गए हुए हैं। तो इस चीज़ का आज वो बेनिफिट मिल रहा है कि उसका 3 महीने में, 4 महीने में उसकी PR आ जाएगी जी। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦ ਠੱਗਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 5-7-10% ਲੋਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 52,000 ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੱਗੀ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਸਿੱਟਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ रुझान कर रहा है? देखिए, आज की डेट में न्यूजीलैंड अगेन उठ रहा है। अगर बच्चे के पास 1 ईयर ओल्ड फंड है और नेक्स्ट ईयर के फंड्स विद सोर्स हैं, तो डेफिनेटली आज के डेट में बहुत हाई चांसेस हैं। बट आई विल सजेस्ट जो बच्चा 12th पास है वो लेवल 7 बैचलर्स में जाए तो इट विल बी मोर बेटर। और जो बच्चा ग्रेजुएट है वो PG डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स ले। अभी आज की डेट में क्या हो रहा था, जो बच्चा 12th पास होता है लेवल 5, लेवल 6 डिप्लोमाज कर रहा है, अभी भी जा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट गो फॉर द बैचलर्स, क्योंकि 1 साल 1.5 साल पढ़ के कुछ नहीं होना। कम से कम 3 साल पढ़ो, उसके बाद बहुत अच्छे लेवल पे आपकी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयर भी मिलेगा, आपकी सेटलमेंट भी होगी, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो न्यूजीलैंड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वेस्ट ओवरसीज इज हेयर टू हेल्प यू। चाहे आप अमृतसर है के ऑफिस में आ सकते हैं, जलंधर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट आपको ऑफिस पड़ता है आप वहाँ। ये जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का स्टे बैक ऑप्शन है, जिसमें आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी है और पेड एजुकेशन भी है। फ्री एजुकेशन मीन्स हम आपको वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स या लैंग्वेज कोर्स के लिए भेजेंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। यूनिवर्सिटी मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री पढ़ सकते हो, या आप यहीं से पेड यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हो। बट कीप इन माइंड, आई विल सजेस्ट गो विद आइल्स। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, रणवीर जी बोलते हैं कि जी यूरोप तो विदाउट आइल्स भी है। मैं भी बोलता हूँ विदाउट आइल्स है, बट विदाउट इंग्लिश नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली पूरे यूरोप में जितनी भी एम्बेसी हैं वो सारी की सारी एम्बेसी इंटरव्यू लेती हैं।
आप कनाडा फाइल लगाओ, न्यूजीलैंड लगाओ, ऑस्ट्रेलिया लगाओ या यूके लगाओ, यूके भी घर है। इन 3 कंट्रीज में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनमें बच्चे को एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। बट यूरोप में जो भी 22-23 कंट्रीज है उसमें अगर आपने फाइल लगानी है तो आपको खुद इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू क्लियर करोगे तभी आपका वीजा आएगा। तो विदाउट आइल्स तो आप जा सकते हो, बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। तो प्लीज मेरी आपसे सजेशन है, अगर आपने जिस भी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री में जाने से पहले थोड़ा सा अपनी इंग्लिश पर वर्क कर लो, आइल्स क्लियर कर लो। आइल्स के साथ फाइल लगाओगे तो हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। इसके अलावा एक डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क में स्पाउस वीजा भी अवेलेबल है। आप यहीं से स्पाउस वीजा पे जा सकते हैं। हम फरवरी 2019 के लिए काम कर रहे हैं। तकरीबन 8-7 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हमारे पास हैं डेनमार्क में। इतने किसी के पास, बहुत कम कंसल्टेंट्स के पास होंगी। आप 12 पास हैं, आप बैचलर्स के लिए जाइए, आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर्स के लिए जाइए, आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। बट वी नीड 6.5 बैंड, 6.5 बैंड चाहिए। चाहे किसी एक मॉड्यूल्स में 5 बैंड हो, 5.5 बैंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए। हम आपकी फाइल लेने में बड़े खुश होंगे और आपका वीजा लगेगा। आप अकेले जा रहे हैं, आपको कोई फंड नहीं दिखाना। स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो 7.5-8 लाख के फंड दिखाने, जो भी एक दिन पुराना चल सकता है। तो आपके पास डेनमार्क भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहां आके मिल सकते हैं। और फरवरी इनटेक के लिए हम 6 बैंड पे भी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बच्चों को इनरोल कर रहे हैं। बट उसमें आपका इंटरव्यू आएगा और इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा। शेड्यूलिंग थोड़ा दसोगे जी, बच्चों ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ दिन कित्थे मिलते हो? जी देखिए, मंडे के दिन मैं मिलूंगा जी अपना करनाल में हमारा आइल्स, पीटी और स्टडी वीजा को लेके एक अवेयरनेस सेमिनार हो रहा है, जिसमें मैंने बताया कि आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेस और अपना पीएसएन सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। प्लस में वहां पे फॉरेनर फैकल्टी भी होगी। स्टूडेंट वीजा के लिए मैं खुद और मेरी टीम होगी। तो आपको आइल्स, पीटी, स्टूडेंट वीजा को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप करनाल SCO 9, 10, 11 मुगल करनाल में आ सकते हैं। सुबह 10 बजे मेरा पूरा दिन करनाल में होगा। नेक्स्ट डे ट्यूसडे है जी, ट्यूसडे को मैं अंबाला ऑफिस में होऊंगा। सेम आपको कनाडा से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, स्टडी वीजा को किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आइल्स को लेके, पीटी को लेके, तो आप मुझे अंबाला में मिल सकते हैं ट्यूसडे को। और वेडनेसडे मेरा चंडीगढ़ सिटिंग होगी, जिसमें अगेन मेरा जो ऑफिस है वो 35C में है, तो वहां आके मेरे से मिल सकते हैं। जी प्रदीप जी, एक बार छोटा जिहा ब्रीफ चाहूंगा, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, किस लिए सद्दा है? रिफ्यूजल केस, आइल्स फंसा हुआ बच्चा कौन आएगा? देखिए, पहली बात तो हमारा 3 घंटे का एक अलग से सेशन चलेगा। जो बच्चे आइल्स, पीटी करना चाहते हैं, ओईटी करना चाहते हैं, तो इसमें आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल के मैंने बताए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज प्रेस के बताए, पीयरसन सर्टिफाइड ट्रेनर, प्लस में फॉरेनर फैकल्टी वहां पे होंगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप आइल्स और पीटी है। आइल्स और पीटी में अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो वीजा चांसेस कम होते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहूंगा, जो बच्चा आइल्स या पीटी कर रहा है, स्ट्रगल में है, कहीं भी जाना चाहता है, और चाहे तो वो अभी सोच रहा है या कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप आइए सुबह 10 AM। इसके अलावा स्टडी वीजा को लेके मेरी खुद की टीम होगी, पूरी टीम होगी, मैं खुद होऊंगा, जिसमें आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, चाहे आपने एक बार रिफ्यूजल है, चाहे 10 बार रिफ्यूजल है, या आप अभी सोच ही रहे हैं, तो आप आइए। आपको जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी, और जेन्युइन गाइडेंस हमेशा कामयाब होती है। जेन्युइन गाइडेंस से ही आप बाहर जा सकते हैं। बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।